morning everyone. My name is Vipadak. I am a student of New Girls Academy from class 9. Here with my classmates to represent our presentation topic is circle, and my classmates names are Ankit, Divyansh, Sunny and Adit. Now Ankit will come and explain what is circle, diameter and radius. Good morning everyone. My name is Ankit. I study in class 9. My presentation topic is circle. What is circle? A closed figure have an infinite line segment, have a infinite line segment, have a fixed distance from particular point is called circle. And what is radius? The distance between center to circumference is called radius of the circle. Radius of the circle, इसे हम लोग radius of circle कहते हैं. What is chord? A line segment from a one point to another, one point circumference to another point of circumference is known as chord. जैसे देख सकते हैं ये हम लोग का chord हो जाएगा. What is diameter? A chord that passes the center, a chord that passes through the center of point is known as diameter. जैसे एक chord जो पास हो रहा है सेंटर से पास होता है इसे हम डायमीटर कहते हैं. Thank you. After me, Sunny Yadav explain some about fact of circle. Sunny Yadav, and I am here to give presentation on arc. What is arc? A piece of a circle between 2 points is called an arc. There are two types of arc: major arc and minor arc. Major arc. The large part of the circle is called the major arc, and the smallest part of the circle is called minor arc. Let's see. The smallest part of the circle is called the minor arc. Minor arc can be represented as AB, this, and the major arc can be represented as B. Thank you. Segment: the region between chords and either of its arc is called an segment of the circles. Now, segments is also of two types: major and minor segments. See, minor segment is the smallest part of this circle area. This is the minor segment, and the big part of the circle is called the major segment. Next topic: sectors. Sectors. The region between the arc and two radii joining the centers to the end of the arc is called the sector. Now, there are two types of sectors: major sector and minor sectors. Minor sectors. The small part of the circle is called the minor circle, and the big part is called the major circle. This part is known as the major circle, and this is minor sector. Now, next topic is second. Second. What is second? Second is a line that intersects the circles at 2 points. Now, let's see how second is drawn. This line is called the second, and the 2 points that it cuts the circle is P and Q. Thank you. After me, we will come and explain some facts about circle. Good morning everyone. My name is Vipadak. I am a student of class 9, and I am going to tell you about some topics about the circle, like the centroid, circumcenter, orthocenter, locus, concentric and euler line. What is a centroid? In a circle we have taken 3 points. A, B and C. We have joined it and make the triangle. ये वाली जो वर्टिस है A, यहाँ से इसके अपोजिट साइड पे अगर हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, और फिर C जो है ये वर्टिस एक जो है यहाँ से अगर हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं AB पे, और जो B वर्टिस है यहाँ से अगर हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं AC पे, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं. Now I am going to tell you what is circumcenter. Now we have drawn a triangle A, B and C. Inside the circle. Now from the vertices to the opposite side of the triangle we meet a perpendicular bisector. From the vertices B we meet the perpendicular bisector to AC, and from the vertices C we
make the perpendicular bisectors of AB. Where they meet, this point is known as circumcenter. The difference between centroid और circumcenter is, जो centroid होता है वो perpendicular नहीं होता, मतलब वो 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता है, वो मीडियन है। और ये जो है ये perpendicular bisectors होते हैं, तो ये जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम लोग circumcenter बोलते हैं, और जो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको centroid बोलते हैं। What is ऑर्थो सेंटर? जो वर्टिस है ए, यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं BC पे, जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। फिर यहाँ बी वर्टिस से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे AC पे, जो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करेगी। और एक जो है परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ सी वर्टिस से यहाँ AB पर कर देंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, उनको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में? जो सर्कम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है साइड को, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। और सर्कम सेंटर में क्या था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थी वो मीट कर रही थी, और सेंट्रॉइड में जो कि सिर्फ मीडियंस थी वो मीट कर रही थी, वो परपेंडिकुलर नहीं थी। अब हम बताएंगे लोकस क्या होता है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि लोकस क्या होता है। लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। बिंदु मतलब कोई एक शार्प पॉइंट जिसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट कुछ नहीं है, और पथ मतलब उसका रास्ता। लोकस जो है वो 2 पॉइंट्स का जो है वो वे होता है, मतलब O से R तक ये पूरा इसकी जो है वे हो जाएगा। ये सर्कल जो है ये रेडियस है O और Y R, तो इसकी जो वे है ये पूरी हो जाएगी, तो इसी को हम लोकस बोलते हैं। Now I am going to tell you what is concyclic. Concyclic क्या होता है? कोई भी 4 पॉइंट्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं तो उनको हम concyclic पॉइंट्स बोलते हैं, बस। Now I am going to explain what is Euler line. हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, और फिर सर्कम सेंटर क्या होता है, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। फिर ये देखिए, ये हमारा वो सेंट्रॉइड है, ये हमारा सर्कम सेंटर, और ये ऑर्थो सेंटर। ये जब एक लाइन में हमारी होती है और लाइन इनसे पास करता है तो उसको हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं। थैंक यू। Good morning everyone, this is Adit Singh of 9th standard, and today I am here to give a presentation on theorem. So first theorem is equal chords of a circle subtend equal angle from the center. So this is a circle, a angle AOB हमको प्रूफ करना है एंगल COD के इक्वल है, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें हम लोग को गिवन दिया AB जो कॉर्ड है CD कॉर्ड के इक्वल है, तो चलिए हम जानते हैं। अब हम प्रूफ करते हैं कि एंगल AOB एंगल COD के इक्वल कैसे होता है। यहाँ पर दिया है AO इक्वल टू CO, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है तो इसको हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। AB गिवन AB इक्वल टू CD गिवन दिया है CD गिवन, इसमें ये दिया है BO इक्वल टू DO, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल रहेगा। रेडियाई ऑफ सर्कल। सो नाउ ट्रायंगल AOB is congruent of the triangle COD by side criteria। तो इससे प्रूफ कर सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। So now next theorem is the perpendicular from the center of a circle bisect the chord। इसमें given क्या दिया, OC परपेंडिकुलर टू AB। OC जो लाइन है परपेंडिकुलर AB लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि OC जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है AB पर। और प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC मतलब कि OC जो है AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन भी हम लोग को करना है, मेक लाइन OA एंड OB, मतलब OA को हम AO को मीट करेंगे और OB को मीट कर देंगे। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB। इसमें हम लोग को गिवन क्या दिया है, OC जो परपेंडिकुलर टू AB। नाउ AO इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल ना। उसके बाद OC जो है वो कॉमन है, कॉमन आर
नाउ OCA इक्वल टू OCB, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग का प्रूफ हो गया बाय RSS क्राइटेरिया से कि ट्रायंगल OCA कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल OCB। OCB now by simplicity से प्रूव कर सकते हैं AC इक्वल टू AB। हम लोग को ये प्रूफ करना था कि AC इक्वल टू BC। नाउ AC इक्वल टू BC बाय CPCT। थैंक यू। एंड नेक्स्ट देव्यांश विल कम एंड एक्सप्लेन दिस टॉपिक। This is Devan Singh of class 9 and I am here to explain you the theorems. And the theorem is the angle subtended by the arc of the center is double to the subtended by the any point of genuine center. मतलब ये जो सेंटर है इस पे जो यहाँ एंगल बनेगा, मतलब ये वाला ये इसका जो ये डबल होगा, मतलब ये जो एंगल यहाँ बनेगा एंगल ACB जो होगा वो एंगल AOB का 1/2 होगा, यानी हाफ होगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो C है और उसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा D पर पॉइंट O के थ्रू। तो इससे हमें दो चीज़ रिप्रेजेंट होगा, एक ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट होगा, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में होने का फ़ायदा ये होगा हमें कि जो यहाँ का एंगल होगा वो X मान लेंगे हम लोग, ये एंगल X ले लेंगे, ये एंगल Y ले लेंगे, ये एंगल Y ले लेंगे, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि ये दोनों सेम साइड में है। तो इसमें इतना करने के बाद हम आगे प्रूफ करेंगे इसको डबल होगा। तो उसके लिए हमें पहले ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जो यहाँ बाहर का एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी पॉइंट पे वो इसका डबल होता है। तो एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल Y प्लस एंगल Y, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी। उसके बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOC, जो इसमें बाहर का एंगल बनेगा ये वाला टोटल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल X प्लस एंगल Y। अरे एंगल X प्लस X होगा क्योंकि इसमें दोनों एंगल ये X में आएंगे, तो इसमें एंगल X प्लस X होगा। तो जो ये हमारा ये एंगल हो गया, ये हमारा 2x आ गया, ये हमारा 2y आ गया, और ये पूरा कंप्लीट हमारा यहाँ x एंड y है, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा x प्लस y हो जाएगा। तो इसमें हमारा एंगल ACB इक्वल्स टू x प्लस y होगा। और जो हमारा ये वाला एंगल है इसमें इधर 2y है, इधर 2y है, इधर 2x है। तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, क्योंकि दोनों एंगल को हम लोग डिवाइड किए हैं। तो इसमें हम लोग AOD की वैल्यू, AOD की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो इधर एंगल AOB इक्वल्स टू x प्लस x प्लस y प्लस एंगल y, ये हमारी इक्वेशन निकलेगा। इस इक्वेशन में हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2। तो अगर हम ऐसे ले 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y, ये हो जाएगा क्योंकि 2x है, 2 बार y है, ये भी 2 बार x है, 2x 2y। हम अगर इसको 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस y निकलेगा। अगर ये एंगल 2x AOB इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, ये हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। और हमारा दूसरा इक्वेशन था ये चीज़। अगर हम दोनों कंपेयर करें तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, एंगल ACB इक्वल्स टू 2 एंगल 1/2 होगा, क्योंकि ये डबल है तो ये हमारा x एंड y है, इधर 2x है तो ये डबल हो जाएगा, 1/2 में आ जाएगा। एंगल AOB, ये था हमारा थ्योरम और हमने थ्योरम को पूरा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। Thank you guys for watching our video. Like to our video and subscribe to the channel. थैंक यू। Thank you.